Hello guys, welcome back to my educational channel Gravity Tech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from scratch even if you do not have any programming background. In previous videos, we have already covered the topics like C language history, C comparison with the human language, character set, keywords, variables, constants, different data types, different format specifiers to use with the primitive data types, then how to deal with the input output operations using printf, scanf. We also looked at the operators, arithmetic operators, bitwise operators, logical operators, right, relational operators, assignment operators, operator precedence, associativity. We also looked at the conditional statements, which includes if, else if, nested if else. Okay. We also looked at the switch case, which directly helps us to basically switch to a particular use case, right, or particular condition. Break statement, which we use generally in switch or in loops, right. We also looked at the loops, for loop, while loop, do while loop, and the nested loops wherever necessary to deal with the maybe a multi-dimensional arrays. We also looked at the continuous statements where we want to basically pass some execution in loops, right. We also looked at the arrays, single dimension arrays, double dimension arrays, that is matrices and all, tables, multi-dimension arrays. We also looked at the strings, the different strings operations, right? Some built-in functions which we use to deal with the string like strcpy, strcmp, strncpy, like that, right? We also looked at in detail the functions, right? Uh, then call by value, call by reference. We also looked at the structures and unions and pointers, right, where we say pointers. We looked at the pointers, how to work with the pointers with array, pointers to strings, pointers to functions, pointers to multidimensional arrays, pointers to structures, pointers to unions, pointers to function. We also looked at the type def, enums, and the storage classes, right. So all these things are already covered as a part of the C language course. And if you want to revise or clear any of your these concepts which I just talked about, go to the channel and watch the respective videos. You will definitely get all of your doubts cleared. If you have any further doubts, feel free to comment on this video. I will try to clear those queries for you. In today's video, we will mainly cover the preprocessors in detail. We have actually used hash include in each and every program of C language, right? But what exactly that hash include means, सो वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो इन टूडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम लोग प्री प्रोसेसर्स एक पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं. Guys, I'm repeating again, if you haven't subscribed it, do subscribe to the channel, as I will not be limiting this channel with the C language only. It will also have Python, data structures with C, C++, Java, Shell, operating system, and a lot of mathematics too. Okay, now let's see what are preprocessors and how to work with the preprocessor in C language. Okay, now what ex what exactly the agenda of today's video is, like, we are going to cover preprocessors in detail and what exactly the things we are going to cover as a part of next session. Okay, now what are the preprocessors? Okay, the C preprocessor is not a part of compiler. ये compiler का part नहीं होता है. It is a separate step in a compilation process. The C processor is just a text substitution tool. Text substitution tool, right? Just text क्या करता है, उठाता है और substitute करता है. ये सब हम actually डिटेल में practically देखेंगे, right? But just remember these are the points, and it instructs the compiler to do required pre-processing before actual compilation. All preprocessor commands begin with the hash symbol. So जो भी लाइन अगर हैश से शुरू होती है, मतलब वो प्री प्रोसेसर का लाइन है, वो कंपाइलर के लिए नहीं है. ओके, सो एवरी लाइन स्टार्टिंग विद द हैश मींस वो प्री प्रोसेसर का लाइन है. जैसे हम हैश इंक्लूड stdio डॉट h लिखते हैं, तो वो हैश से शुरू होती है लाइन, इसलिए वो लाइन प्री प्रोसेसर प्रोसेस करता है. ओके, नाउ सी हाउ इट इज. सबसे पहले हम एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, राइट. ए डॉट सी, लेट्स से कि आपने एडिटर में एक प्रोग्राम लिखा, उसको ए डॉट सी नाम दे दिया. तो जैसे आप उसको कंपाइल और रन करने की कोशिश करेंगे, एट दैट टाइम इट विल बेसिकली गो टू द प्री प्रोसेसर. पहले ये पता नहीं चलता, लेकिन ये प्री प्रोसेसर को जाता है. प्री प्रोसेसर क्या करता है? प्री प्रोसेसर उस प्रोग्राम के अंदर
जितनी भी लाइन हैश से शुरू हो रही है, रिमेंबर, जितनी भी लाइन हैश से शुरू हो रही है, वो सभी लाइंस को वो अपने हिसाब से उसके पास जो डेफिनेशन है उस तरीके से प्रोसेस कर देता है। हैश इंक्लूड को, अगर हैश इंक्लूड stdio.h है तो इसका मतलब क्या, हैश के बाद इंक्लूड है, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर मैक्रो। सो इंक्लूड का मतलब क्या हो गया कि जो भी stdio.h फाइल है उस जो जहां कहां पे भी है, राइट, एक डिफाइंड में पाथ में है, उसको वहां से उठाओ, उसके अंदर के जितना पूरा का पूरा कोड है वो हैश इंक्लूड stdio.h एक लाइन की जगह पे रख दो। अगर stdio.h इस फाइल में 200 लाइन का कोड है तो वो एक लाइन को रिप्लेस करके 200 लाइन वहां पे कॉपी कर देगा। ये होता है हैश इंक्लूड, राइट। उसी तरीके से बाकी और सारे प्री प्रोसेसर के मैक्रोज है जो प्री प्रोसेसर टेक केयर करता है, और a.c को एक्सपांड करके a.i बना देता है। अभी देखिए, अगर आपने 4 लाइन का कोड लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन करली ब्रेस प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0 एंड करली ब्रेस एंड, आपका प्रोग्राम खाली 4 या 5 लाइन का, लेकिन जब ये प्री प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, प्री प्रोसेसर उसको कितनी लाइन का बना देगा, कम से कम 200-300 लाइन का बना देगा। क्यों? क्योंकि हैश इंक्लूड stdio.h जो फाइल है, उस फाइल के अगर कंटेंट्स 200 लाइन के हैं तो एक लाइन 200 लाइन से रिप्लेस होगी और बाकी के 4 लाइन मिले के कितने लाइंस हो गए, 204। इसीलिए प्री प्रोसेसर हमेशा क्या करता है, editor.c का, जो मतलब एडिटर में हम बनाते हैं, राइट, नॉर्मल a.c वगैरह जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको एक्सपांड करता है, प्री प्रोसेस करता है, मतलब एक्चुअल एग्जीक्यूट होने के पहले वो प्रोसेस कुछ प्री प्रोसेसिंग करता है उस पर। फिर प्री प्रोसेसर का जो आउटपुट है a.i वो जाता है कंपाइलर को, बिकॉज कंपाइलर को हैश वाले लाइन से कुछ लेना देना होता नहीं है, कंपाइलर को हैश वाली लाइंस पता भी नहीं होती है। कंपाइलर ओनली प्रोसेसेस उसके पास जो लॉजिक है सिंटैक्स सिमेंटिक्स चेकिंग का, वो उस पे वो अप्लाई करता है, राइट। सो कंपाइलर अभी क्या करेगा, कंपाइलर कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, कोड को क्वालिटी ऑफ कोड बनाने की कोशिश करेगा, उसमें से कमेंट्स रिमूव कर देगा। सो it will basically try to optimize the code and make quality of executable code, लिंकेबल कोड रेडी करेगा मोर, राइट। फिर कंपाइलर का आउटपुट होता है ऑब्जेक्ट कोड करके, a.out बोलते हैं उसको, राइट। फिर वो कंपाइलर का आउटपुट जाएगा लिंकर को। अभी कंपाइलर को डेफिनेशन से कुछ लेना देना होता नहीं है, कंपाइलर को क्या होता है कि मोस्टली इट इज, उसको अगर ये पता हो कि ये क्या है, डिक्लेरेशन भी अगर आपने कर दिया कि नहीं भाई ये ऐसे है, तो भी कंपाइलर आगे चला जाएगा। लेकिन लिंकर का काम क्या है, लिंकर कंपाइलर का आउटपुट लेगा और लिंकर क्या करता है, कंपाइलर के आउटपुट को, आउटपुट के अंदर जो जो फंक्शंस यूज किया है, अभी आप प्रिंटफ हमने बहुत बार यूज किया हुआ है, स्कैनफ बहुत बार यूज किया है, अगर stdio.h हमने ऐड किया है तो उसमें प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, जस्ट फंक्शन है जो उसको डिक्लेरेशंस उसमें है, किसमें है, stdio.h में, लेकिन उसका डेफिनेशन कहीं पे और लाइब्रेरी पे पड़ा हुआ है, तो उस डेफिनेशन को लिंक करने की कोशिश, मतलब लिंक करने का पार्ट कौन करता है, लिंकर करता है, राइट। सो लिंकर a.exe रेडी करेगा और फिर वो प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, राइट, कौन कौन से है, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या करता है, जो भी आप हैश इंक्लूड के आगे फाइल नेम दोगे, उस फाइल को पूरा का पूरा कॉपी, उस फाइल का पूरे कंटेंट्स कॉपी करके उस एक लाइन पे रिप्लेस कर देगा, राइट। देन सेकंड हैश डिफाइन, हैश डिफाइन मतलब कुछ तो स्ट्रिंग रहेगा जिसको आपको मतलब मे बी लेट से आपको डिफाइन करना है। अभी सर्कल का अगर हम एरिया निकाले, राइट, या फिर सर्कल के एरिया हो गया, सर्कल का मे बी पेरीमीटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर हो गया, यहाँ सब जगह पे हम पाई यूज करते हैं। तो हो सकता है हम क्या करेंगे, हम एक मैक्रो डिफाइन कर देंगे कि पी आई, पाई मतलब क्या, 3.14। सो आप पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पे पी आई यूज किया हुआ है वहां पे क्या करेगा, वो पी आई की वैल्यू को 3.14 क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्योंकि अगर आप पूरे प्रोग्राम में अगर 50 बार 3.14 लिख रहे हो तो इट डजेंट मेक सेंस, आपको रीड करते वक्त बहुत तकलीफ हो सकती है, आपको मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हैश डिफाइन पाई 3.14 किया तो हर जगह पे अगर आप पाई लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं पाई है यहाँ पे, पाई मतलब क्या, 3.14 है, राइट। सो कंपाइलर को जाते हैं तो 3.14 ही जाएगा, लेकिन प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस पाई को 3.14 बना देगा, राइट। नाउ अनडेफ मतलब अगर कोई ऑलरेडी मैक्रो डिफाइंड है तो उसको अनडेफ कर दो। ओके, इफ डेफ, अगर कोई मतलब जैसे हम इफ एल्स करते, राइट, अगर कोई मैक्रो डिफाइंड है
तो उस पर क्या एक्शन करना है, राइट, दैट इफेक्ट्स इफ डेफ डिफाइंस। इफ नॉट डिफाइंड, अगर कोई मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो क्या करना है, अगर कोई इफ हैश इफ अगर है, मतलब अगर वो डिफाइंड है, राइट, एल्स एल्स पार्ट ऑफ इफ और इफ डेफ, हैश एल्स इफ जो इफ एल्स वाली कंडीशंस में होते हैं, राइट, हैश एंड इफ जो इफ शुरू किया है हम लोगों ने यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो हम इफ शुरू कर रहे हैं उस इफ को एंड भी करना होता है। हैश एरर, अगर कुछ एरर्स वगैरह आ रही है, राइट, उसको अगर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देन हैश प्रैग्मा एक्चुअली एक स्पेशल प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जहां पे इट हेल्प्स अस टू इशूइंग स्पेशल कमांड्स टू द कंपाइलर। कंपाइलर को एक स्पेशल कमांड्स इशू करने के लिए बोला जाता है। लेट्स से आपका मेन फंक्शन आपने लिखा, राइट, हमको पता है कि मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर आपको मेन के पहले कुछ एग्जीक्यूट करना है, मेन के बाद अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो आज तक आपने कब तक कभी ट्राई किया है? वो कर सकते हैं। वो किससे ट्राई कर सकते हैं? वो हम प्रैग्मा से मुमकिन है। तो प्रैग्मा से क्या हो सकता है कि आपका जो मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करने के पहले कुछ चीजें करो, मेन होने के बाद कुछ चीजें एग्जीक्यूट करो। सो दिस इज व्हाट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज, राइट। नाउ द let's look at the practical examples, right, of preprocessor directives. हम शुरू करते हैं hash include से, right, hash include stdio.h, okay, int main, correct, then let's say printf hello, correct। अभी हमने यहाँ पे hello प्रिंट कर दिया एंड रिटर्न 0। अभी ये कोड कितने लाइन का दिख रहा है आप लोगों को? खाली 8 लाइन का, राइट। अभी अगर हम यहाँ से ब्लैंक लाइन भी निकाल दिया तो ये कोड हो गया खाली 5 लाइंस का, करेक्ट। अभी हमको लगता है खाली 5 या 6 लाइन का कोड है, लेकिन प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम में सभी हैश से शुरू होने वाली लाइंस ढूंढेगा। सो ये पहली सबसे लाइन है हैश से शुरू होने वाली, फिर वो हैश के बाद देखेगा क्या है, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सो इस इंक्लूड का एक कुछ मतलब है जो प्री प्रोसेसर को पता है। ओके, सो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इंक्लूड करना है, मतलब क्या, stdio.h फाइल को कहाँ कहीं एक लोकेशन से उठाना है। अगर इस फाइल के अंदर जितने लाइंस है वो पूरे के पूरे लाइन यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए अभी इसके अंदर कितने लाइंस है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है stdio.h फाइल, आप अगर देखोगे तो ये इतना बड़ा फाइल है, उसमें 963 लाइंस है। मतलब जब ये प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, प्री प्रोसेसर इसको 963 प्लस 6 कितने 969 लाइन का बना देगा, करेक्ट। सो प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक्सपांड करता है, राइट। हम अभी इसको सेव कर देते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोगों ने इसको रन किया तो सिंपली प्रिंट करेगा हेलो, करेक्ट। अगर हमने इसको रन नहीं, अगर हमने यहाँ पे मैक्रो ए डिफाइन नहीं किया तो क्या होगा, सी ये आगे प्री प्रोसेसर कुछ एरर देगा नहीं, प्री प्रोसेसर के पास वो इंटेलिजेंस है ही नहीं एरर देने का। लेकिन आगे जब जाएगा तब कंपाइलर देखेगा अरे प्रिंटफ, लेकिन प्रिंटफ तो यहाँ कहीं पे है ही नहीं, तो मैं करूँ क्या, तो वो एरर दे देगा। सी प्रिंटफ इज नॉट डिक्लेयर्ड, क्यों, क्योंकि प्रिंटफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंटफ है क्या। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, इस पूरी फाइल को यहाँ पे ला देता है, तो ये इसके ऊपर जो कोड आता है इसमें से प्रिंटफ का डेफिनेशन, प्रिंटफ का डिक्लेरेशन वहां पे आ जाता है, इसलिए कंपाइलर को पता लगता है प्रिंटफ क्या है, राइट। तो ये हो गया हैश इंक्लूड। अभी हम देखते हैं हैश डिफाइन, राइट। सो लेट्स से कि हैश डिफाइन हम लोगों ने पाई करके लिया 3.14, करेक्ट। हमें पता है पाई का वैल्यू होता है, राइट, 3.14। अभी मैं एक रेडियस लेता हूं इंट आर, और लेट्स से फ्लोट आर, राइट, फ्लोट आर इज इक्वल टू 3.5 करके मैंने एक रेडियस ले लिया। नाउ आई वांट टू प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, %f, राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या आना चाहिए, पाई। अगर हम ऐसे करते हैं, राइट, हमको पता है 3.14 इंटू आर, दिस इज व्हाट अपना एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। अभी हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल और क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, करेक्ट।
अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, करेक्ट। अगर हम फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.14 आर। अभी देखिए लेकिन ये रीडेबल है क्या कोड, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये रन हो जाएगा, करेक्ट। नाउ ये दिस विल रन एंड इट विल टेल अस कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। लेकिन आपको इस कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए इस 3.14 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पाई, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हमने, पाई। तो जहां जहां पे आप 3.14 लिख रहे हो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पाई। अभी प्री प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ पे तो उसने str.h पूरा ला के रख दिया। अभी पाई की जगह पे क्या, 3.14, तो वो हैश डिफाइन, मतलब ये क्या बोल रहा है, पी आई करके डिफाइन किया हुआ है 3.14। सो जहां जहां पे पूरे प्रोग्राम में आपको पाई दिखेगा उसको 3.40 से रिप्लेस करो। सो कंपाइलर के जाते वक्त पाई आर आर नहीं जाएगा, कंपाइलर के जाते वक्त, कंपाइलर के पास जाते वक्त ये जाएगा 3.14 इंटू आर आर, ऐसे जाएगा, करेक्ट। सो अभी अगर हमने इसको रन किया तो इट विल गिव द सेम वैल्यू, राइट। सो अंडरस्टूड, हैश डिफाइन का मतलब क्या होता है, हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है। अभी लेट से हैश अनडिफाइन कर देते हैं हम लोग, हैश अनडेफ। हैश अनडेफ का मतलब क्या होता है कि भाई अगर पाई को ऊपर डिफाइन किया हुआ है तो उसको अनडिफाइन कर दो। अभी देखो पहले हमने जब एग्जीक्यूट किया तो एरर आया क्या, नहीं। लेकिन हमने पाई यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे अनडिफाइन कर दिया, मतलब पाई कहाँ तक डिफाइंड है, खाली यहाँ तक ही है। अब अभी हम यहाँ पे और उसको हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी ये क्या देगा, इट विल गिव द एरर, सी। तो क्योंकि यहाँ पे इसको पाई पता ही नहीं है, प्री प्रोसेसर ने यहाँ से शुरू किया और इसको यहाँ पे खत्म कर दिया, करेक्ट। तो आप एक, फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर इफ नॉट डिफाइंड, अगर पाई डिफाइंड नहीं है, राइट, तो क्या करना है। अगर पाई डिफाइंड नहीं है तो लेट से आपको यहाँ पे लिखना है 3 और मे बी लेट से 4, ओके। एंड देन अगर एल्स, अगर पाई डिफाइंड है तो आपको 3.14 ही लेना है, लेट पाई लेना है, राइट। लेकिन आप जब इफ शुरू करते हो तो इफ को एंड भी करना होता है। इफ को एंड कैसे करते हैं, हैश एंड इफ। तो अभी तो पाई डिफाइंड है 3.14, सो एग्जीक्यूट होगा ए, करेक्ट। ए वाला एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इफ नॉट डिफाइन करके, राइट। सो लेट्स सी, इट शुड बेसिकली गिव द सेम 21 पॉइंट, पेरीमीटर के पास आप अगर ध्यान दोगे 21.98 आया। लेकिन अगर अभी हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया समझो, करेक्ट। अगर हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया तो अगर ये तो एरर देगा, करेक्ट। तो अभी ये यहाँ से डिफाइन नहीं है तो क्या, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब 2 into 4 are 8, 8 into 3.5 करके, करेक्ट। तो व्हाट इट विल बी, सी 28, करेक्ट। सो दैट्स हाउ इट इज, ओके। तो ये होता है हैश इफ नॉट डिफाइंड, हैश एल्स कैसे यूज करते हैं, हैश एंड इफ कैसे यूज करते हैं। सिमिलरली आप हैश इफ डिफाइन यूज कर सकते हो, हैश एल्स इफ यूज कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ व्हाट आर, देयर इज वन मोर थिंग नाउ विद द हैश इंक्लूड। कभी कभी बहुत बार हम लोग ऐसे यूज करते हैं, हैश इंक्लूड abc.h। अभी इस इंक्लूड में, इस ब्रैकेट्स में और इसमें क्या फर्क है, इसका मतलब होता है सिस्टम लाइब्रेरीज, इसका मतलब होता है सिस्टम लाइब्रेरीज, राइट। जो ऑलरेडी हमको, जब हम आईडी वगैरह यूज करते हैं तो ऑलरेडी उसमें दिया होता है, हम यूज नहीं, हम खुद नहीं क्रिएट करते। और ये होते यूजर डिफाइंड हीडर फाइल्स, यूजर डिफाइंड हीडर फाइल्स। अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपको वहां पे हीडर फाइल्स खुद के बनाने पड़ेंगे, तो आप वो कैसे इंक्लूड करवाओगे, तो आप वहां पे इस तरह से यूज कर सकते हो, ओके। सो दिस इज व्हाट द वन थिंग इज अबाउट हैश इंक्लूड। नाउ लेट्स से कि अभी हमको एक थोड़ा सा फंक्शन टाइप लिखना है, ओके। नाउ यहाँ पे हैश डिफाइन, हैश डिफाइन पावर, हैश डिफाइन पावर, करेक्ट। हैश डिफाइन ऑफ rather than power maybe let's say square, right, square। अभी अगर आप x दोगे, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज मैक्रो, ओके।
आप जब भी यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे कोई भी नंबर दोगे तो वो उसको कैसे रिप्लेस कर देगा, एक्स स्टार एक्स से। मतलब यहाँ पे जो एक्स दोगे आप एक्स स्टार एक्स से रिप्लेस करेगा। लेट्स नाउ ट्राई टू यूज दैट। अभी हम प्रिंट एफ करते हैं, राइट। स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू परसेंट डी। सो स्क्वायर ऑफ 3 क्या आएगा, उसको कैसे यूज करना है, स्क्वायर 3। सो वो हम जब यूज करेंगे तो ये रहेगा स्क्वायर 3 इस तरीके से, करेक्ट। नाउ सिमिलरली अगर हमको स्क्वायर ऑफ 5 लेना है तो क्या करेंगे, राइट। सो हम स्क्वायर ऑफ 5, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 के लिए कैसे यूज करेंगे मैक्रो, स्क्वायर ऑफ 5। देखिए अभी जब प्री प्रोसेसर यहाँ पे आएगा हैश डिफाइन, उसको वो क्या करेगा, ये जहाँ पे दिखेगा ऐसे उसको एक्स स्टार एक्स बना देगा। तो यहाँ पे स्क्वायर 3 दिखने के बाद इसको क्या बना देगा वो, 3 स्टार 3। इसलिए आंसर आते वक्त क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे इसको बना देगा 5 स्टार 5, तो आंसर क्या आएगा 25। नाउ लेट्स लुक एट बाय रनिंग इट। सी आया 9 25। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे 3+3 दोगे तो क्या आएगा, जनरली 3+3 क्या होता है, 6 होता है, राइट। सो यहाँ पे 36 आंसर आना चाहिए। लेकिन जब ये इसको रिप्लेस करेगा, x क्या रहेगा, 3+3। सो ये व्हेन इट विल रिप्लेस इट विल बिकम लाइक दिस, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 into 3 आर 9, 9 and 6 आर 15 आएगा। सो अगर आप मैक्रोज भी, पैरामीटर्स मैक्रो यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सी नाउ, सी 15, इज इट करेक्ट, नो। तो अगर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो आपको इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है कि हर एक को क्या करो, इसमें दे दो, क्या, ब्रैकेट में। ओके, तो अभी क्या होगा, व्हेन यू आर पुटिंग इट इनटू द ब्रैकेट, तो भी इसको ये इस तरीके से रिप्लेस करेगा, x एंड अगेन x। सो अभी ये हो जाएगा 6 स्टार 6, तो ये क्या आ जाएगा, 36 आंसर देगा, करेक्ट। So remember, when you are using a parameters macro, you should basically use it like this. Okay. So this is how it is. Now let's look at the next. Now there are some predefined macros as well. अगर आपको सिस्टम का डेट निकालना है, सिस्टम का टाइम निकालना है, आप कौन सी फाइल पे वर्क कर रहे हो वो निकालना है, या फिर कौन से लाइन नंबर पे हो करेंटली, राइट, वो निकालना है। तो ये जो है उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड मैक्रोज है। प्री डिफाइंड मतलब आपको डायरेक्टली वो वाला चीज आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे आज का अगर डेट आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपली इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ डेट ऑफ टुडे इज %s। ये क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, स्ट्रिंग, राइट। सो उसके लिए इस तरह से मैक्रो है। इसका मतलब ये सिस्टम ने हमको मैक्रो डिफाइन करके दिया हुआ है, प्री प्रोसेसर मैक्रो। सो ये देगा डेट आपको। सिमिलरली अगर आपको टाइम लिखना है, राइट, करंट टाइम इज अगेन %s। सो ये आपको देगा % टाइम करके। ओके, अगर आपको फाइल का नाम देखना, आप कौन सी फाइल पे काम कर रहे हो, राइट, फाइल नेम इज, ये सभी सिस्टम ने प्रोवाइड किए हैं, ये मैक्रोज हमने डिफाइन नहीं किया है, राइट, ध्यान में रखना। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल। ओके, नाउ आपको अगर ये देखना है कि आप कौन से लाइन पे काम कर रहे हो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, लाइन नंबर इज, राइट, इट शुड बी व्हाट, %d, करेक्ट। सो लाइन, ओके। नाउ देखिए अगर ये लाइन नंबर 13, यहाँ पे 13 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, ट्राई टू रन इट। अगर हमने इसको रन किया तो ये देखो, आज का डेट उसने दे दिया 11 फरवरी 2023, अभी का टाइम दे दिया रात के 8:43 हुआ है, फाइल नेम दे दिया, राइट, प्री प्रोसेसर 1.cpp है, और लाइन नंबर क्या है, 13 लाइन नंबर पे काम कर रहा है। ओके, सो दीज आर द प्री डिफाइंड मैक्रोज, रिमेंबर। ओके guys, so this is how you can deal with the preprocessors. Now let's look at the next topic. Now there are certain preprocessor operators. Preprocessor operators क्या होते हैं, अभी लेट्स से कि आपको स्क्वायर जो है, राइट, स्क्वायर तो छोटा हो गया फंक्शन, लेकिन कुछ फंक्शंस बहुत बड़े भी होते हैं। कि आपको अगर कोई एक मैसेज डिफाइन करना है, राइट, लेट्स से मैसेज, और मैसेज को आप पैरामीटर्स दे रहे हो ए एंड बी, इस तरीके से।
और मैसेज क्या है आपका, प्रिंट एफ, करेक्ट, हेलो हाउ आर यू, करेक्ट, ये वाला मैसेज है आपका। अभी मुझे बोलिए कि सी नाउ दिस लुक्स, अगर आपको ये लाइन बहुत लंबा खींचा जा रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस लाइन को अगले लाइन पे ले सकते हो। लेकिन देखो अभी अगले लाइन पे लेते ही इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, मतलब एक प्री प्रोसेसर का स्टेटमेंट रहा ही नहीं, क्योंकि प्री प्रोसेसर ओनली लाइंस, ऐसे लाइंस को प्रोसेस करता है जो लाइन हैश से शुरू होती है। ये है भी हैश से शुरू हो रही क्या, नहीं। तो अगर आपको ये वाला लाइन बताना है कि भाई इसी मैक्रो का पार्ट है तो आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश। देखो अभी चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंटफ क्या है, इसी का अगला हिस्सा है। तो आप जब यहाँ पे मैसेज ए बी प्रिंट करोगे, राइट, लेट्स से, राइट, मैसेज ए बी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 and 2 लेट्स से, राइट। तो ये क्या करेगा, दिस विल बेसिकली प्रिंट द मैसेज नाउ, सी हेलो हाउ आर यू। लेकिन व्हाट इफ अगर आपको 1 और 2 प्रिंट करने हैं, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, 1 और 2 प्रिंट करने हैं, करेक्ट। सो हाउ वुड यू बेसिकली डू दैट। तो आप यहाँ पे लेट्स से ऐसे प्रिंट करना है, राइट, व्हाट बेसिकली, राइट, इट शुड हैव हेलो, अगर यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा राकेश, करेक्ट, एंड हाउ, राइट, ऐसे दो अगर मैंने आपसे भेजे, राइट। सो मुझे प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, हेलो राकेश हाउ आर यू। तो हाउ नहीं, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, इसको ये पूरा फंक्शन, ये पूरा स्ट्रिंग पास करता है कि मतलब मुझे राकेश को कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ऐसे आना चाहिए, राइट। तो मुझे चाहिए हेलो देन राकेश कॉमन, इस तरीके से। अभी मैं इसको किस तरह से लूंगा, राइट, सी उसके लिए होता है हैश ऑपरेटर। उसके लिए क्या होता है, हैश ऑपरेटर। आप अगर यहाँ पे हैश ए लिखा तो भी क्या करेगा, ये हेलो प्रिंट करेगा। उसके बाद ए को भी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, जो अपने यहाँ से राकेश भेज रहे हैं, तो हेलो राकेश हो जाएगा। उसके बाद वो प्रिंट करेगा कॉमा, करेक्ट, एंड देन वो बी को भी स्ट्रिंग करके ले लेगा। तो अभी वो प्रिंट किस तरह से करेगा, हेलो राकेश हाउ आर यू, करेक्ट। नाउ लेट्स सी, सी हेलो राकेश हाउ आर यू, करेक्ट। तो स्ट्रिंग्स कंसीडर कर लिया उसने। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, राइट, वेर आर यू, तो वेर आर यू ले लेगा, ओके, सी सो वेर आर यू। सो इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर मैक्रो कंटिन्यूएशन ऑपरेटर, राइट। एंड देन जो हैश अभी हमने यूज किया है, हैश को बोलते हैं स्ट्रिंगाइज ऑपरेटर, ओके। सो हमने स्लैश और हैश किस तरह से यूज करना है प्री प्रोसेसर्स में, ये भी देख लिया। नाउ टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर। अभी क्या होता है कि हैश, एक हैश यूज होता है इसके लिए, किसके लिए, स्ट्रिंग्स के लिए। लेकिन मुझे अगर एक कोई और लेना है, राइट, लेट्स से अभी मुझे इंटीजर या फ्लोट पास करना है, तो फिर क्या करूं मैं, हैश डिफाइन लेट्स से एरिया ऑफ सर्कल, मैंने इस तरीके से एक यूज कर लिया, राइट। लेट्स से मैं एक मैक्रो डिफाइन किया है एरिया ऑफ सर्कल करके, जो रेडियस लेगा ना। जब वो रेडियस लेगा तो उसके बाद वो डायरेक्टली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ सर्कल, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, is percent d, correct, area of circle is what, percent d। now अभी यहाँ पे किस तरीके से आएगा, ओके, लेट्स सी। so see, so area of the circle is what we want to find out, right, let's say, and we want to send some x now। how does the hash hash works, hash hash जो होता है, राइट, आपका जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम और बाद में एक इंटीजर आप अगर दे रहे हो, राइट, दैट्स हाउ इट इज। अगर वेरिएबल का नाम है टोकन 2, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, टोकन और दैट इंटीजर
हैश हैश एक्स। तो आप यहाँ से अगर 2 पास करोगे तो एक्चुअली यहाँ पे क्या लेगा, टोकन 2 लेगा। सो टोकन 2, सो ये जो है दिस विल बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, इस तरीके से। ये जो प्रिंट एफ है ये किस तरीके से रिप्लेस होगा, ये इस तरीके से रिप्लेस रिप्लेस होगा। सो ये हो गया टोकन 2 और ये भी हो गया टोकन 2, एंड देन इट विल गो टू कंपाइलर। अभी टोकन 2 का वैल्यू क्या है, 3.2, 3.2, 3.2, 3.14, इस तरीके से आंसर आएगा। ओके, अभी देखिए, सो कि अगर आपको टोकन ही नाम लेना है, ऐसे कुछ नहीं है, आप तो अलग कुछ और भी नाम ले सकते हो, लेकिन उस नाम को आपको एंड क्या करना है, किसी इंटीजर से करना है, ताकि आपको उस टोकन आप टोकनाइज कर सके। लेट्स से नाउ ट्राई टू राइट, सी द एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट, 28.26, करेक्ट? या, so let's look at the next stuff. So next slide is predefined macros. We already saw date, how to print, see time, file, line. There is stdc, right, to deal with the nc characters part, right? And then we also saw slash, we saw hash, we saw double hash operator. There is a defined operator as well. It basically same works as a hash def. Okay, and the parameters macros we saw, right? So these all things we already saw practically. Now this is what actually I had from this video. नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल ऑपरेशंस देखने वाले हैं। फाइल कैसे तैयार करना है, फाइल को रीड कैसे करना है, फाइल के अंदर राइट कैसे करना है, फाइल के अंदर अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट को अगर जाना है तो कैसे जाना है, किसी भी पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे कैसे आना है, किसी भी पॉइंट से लास्ट तक कैसे जाना है, राइट? ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल बेसिकली वी लुक इनटू द फाइल ऑपरेशंस, राइट? सो गाइज, if you like the video, please do not forget to subscribe to the channel and share it with the others as well, right? I wish you happy learning with the Gravity Tech. Thank you.